Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 3, Adaptation in Animals. This is second lecture of chapter 3. To survive and reproduce, animals have to adjust to their surroundings. This process of adjustment to surroundings is known as adaptation. अपने आसपास की चीजों के साथ एडजस्टमेंट करने को भी एडेप्टेशन कहते हैं. According to their habitats, animals are divided into 5 groups: terrestrial, aquatic, amphibian, aerial and arboreal. Yesterday we have studied about terrestrial animals and aquatic animals. Now we will study about the other groups of animals. First of all, amphibians. The animals that live both on land and in water are known as amphibian animals. ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं, such as frogs, toads and salamander. They have lungs to breathe when they are on land, and when they are in water, they breathe through their moist skin. जब ये लैंड पर होते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं क्योंकि इनमें लंग्स होते हैं, और जब ये पानी में होते हैं तो इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, मतलब नमी वाली होती है, तो ये उस अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. Their limbs are also adapted for swimming. इनके जो लिम्स होते हैं वो भी इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. ये इसी वजह से, लिम्स की वजह से ही आसानी से पानी में स्विम कर सकते हैं. तो ये आपको स्लाइड में फ्रॉग भी दिख रहा है और ये सैलेमेंडर है. Now, aerial animals. Animals that fly in air are called aerial animals. Birds and some insects spend most of their lifetime in the air. ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स ये एरियल एनिमल्स हैं, ये उड़ सकते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. हमें सबको पता है कि बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके विंग्स होते हैं. देयर बोन्स आर होलो. इनकी बोन्स जो होती हैं वो होलो होती है, मीन्स अंदर से खोखली होती हैं, हैवी नहीं होती हैं. विच मेक देम लाइट इन वेट. इसी वजह से ये वेट में लाइट होते हैं, ये बहुत हैवी नहीं होते. शेप ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो हेल्प्स देम टू फ्लाई इजीली इन एयर. इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो भी ऐसी होती है जो इन्हें हवा में इजीली उड़ने में हेल्प करती है. आपको स्लाइड में बटरफ्लाई, मॉथ, ये इंसेक्ट्स हैं, ये दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं. एंड स्पैरो एंड क्रो ये बर्ड्स हैं. तो ये सब क्या है? एरियल एनिमल्स. Arboreal animals. Animals that spend most of their lifetime on trees are called arboreal animals. Examples: monkeys, squirrels, chameleons and some insects. कुछ animals जैसे monkeys, squirrel and chameleons means गिरगिट और कुछ insects most of the time trees पर रहते हैं. इन्हें arboreal animals कहते हैं. Long limbs and tails of monkeys help them to climb and jump from branch to branch. इनके limbs, इनके हाथ पैर और टेल, लंबी टेल होती है, वो इन्हें हेल्प करती है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जंप करने के लिए और ऊपर ऊंचाई तक चढ़ने के लिए. Forelimbs of
A squirrel help it to hold food and put it into mouth. गिलहरी के जो आगे के दोनों पैर होते हैं, आपको जैसे इस स्लाइड में दिख भी रहा है, इससे वो इजीली खाने को होल्ड कर सकती है और अपने मुंह में डाल सकती है. Some animals have spines on their bodies to prevent them from slipping down. कुछ एनिमल्स के स्पाइंस भी होते हैं जिससे कि ये आसानी से स्लिप नहीं होते और पेड़ों पर आसानी से रह सकते हैं. Adaptation for food. Different animals eat different types of food. According to their food habits, animals can be classified as herbivores, carnivores, omnivores, parasites, and scavengers. Herbivores. Animals that eat only plants or plant products are called herbivores or plant-eating animals. They have sharp and flat front teeth for cutting the leaves. Cows, sheep, buffaloes, deer and goats are examples. कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवर्स या प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. इनके फ्रंट के दांत जो होते हैं वो शार्प और फ्लैट होते हैं ताकि वो आराम से लीव्स को कट कर सकें. Cow, sheep, buffalo, deer and goats. These are herbivores. Elephants and giraffes also eat leaves of the trees. Elephants have strong teeth which allow them to eat twigs and sugarcane. They have strong and long legs which help them to cover long distances in search of food. Long neck of giraffe helps it to reach leaves of the tall plants. Elephants and giraffes both are herbivores. Elephant की जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो शुगर केन या ट्विग्स जो है वो बहुत इजीली खा सकता है. इसके लेग्स लॉन्ग होते हैं क्योंकि इसे फूड ढूंढने के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने के लिए बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है. जिराफ की नेक जो है वो बहुत लंबी होती है ताकि वो टॉल प्लांट्स तक, ऊंचे पेड़ों तक आसानी से पहुंच सके और अपने लिए लीव्स ले सके. Carnivores. Flesh-eating animals are known as carnivores, like tigers and lions, feed on the other animals' flesh. These animals have strong legs that help them to run fast and catch their prey. They have long pointed curved front teeth and strong grinding teeth which help them to tear and eat the flesh. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश मतलब उनका मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं, लाइक टाइगर्स एंड लायंस. इन एनिमल्स के लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी ये अपने प्रे के पीछे, अपने शिकार के पीछे बहुत तेज भाग सकते हैं. इनकी टीथ बहुत लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. इसी वजह से ये फ्लैश को आराम से टीयर करके उन्हें खा सकते हैं. Birds of prey such as hawks and eagles have sharp beaks to tear the flesh. They also have strong claws called talons to catch and tear their prey. Birds जैसे hawks and eagles, इनकी beaks बहुत
शार्प होती हैं जिससे फ्लैश को टीयर कर सकें। इनके क्लॉज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिन्हें टैलेंस बोलते हैं, ताकि ये अपने प्रे को पकड़ सके और उन्हें टीयर कर सके। आपको स्लाइड में दिख भी रहा है कि इनके जो क्लॉज हैं और इनकी जो बीक्स हैं वो कितनी शार्प हैं। Now the next group is omnivores. Animals that eat both plants and animals are called omnivores, like crows, cockroaches, ants, cats and bears. Human beings also are omnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश भी खाते हैं, इन्हें हम omnivores बोलते हैं। क्रोज, कॉकरोचेस, एंट्स, कैट्स, बियर्स और ह्यूमन बींग्स, ये सभी omnivores हैं। Parasites, animals that depend on other animals for their food are called parasites. Examples: leeches, lice, mosquitoes, bugs, roundworms and tapeworms. कुछ एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे लीचेस, लाइस, मॉस्किटोज, बग्स, राउंडवॉर्म एंड टेपवॉर्म्स, जिन्हें पेट के कीड़े भी बोलते हैं। दे ऑल आर पैरासाइट्स। They live on the bodies of other animals called hosts. ये सभी दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं, जिन्हें होस्ट बोलते हैं। ये जिनकी बॉडी पर रहते हैं उन्हें होस्ट बोलते हैं। एंड सक देयर ब्लड, ये अपने होस्ट की बॉडी से ब्लड सक करते हैं। All parasites cause diseases in their host. सभी पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं, ये उनके लिए डिजीजेस हैं, उनके लिए किसी न किसी बीमारी की वजह है। जैसे लाउस, जो जुएं आपके सिर में हो जाएं अगर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो ये भी डिजीज हैं। तो पैरासाइट्स जो हैं ये डिजीजेस की वजह बनती हैं। Scavengers, animals that feed on dead animals and plants are called scavengers. Vultures, raccoons, hyenas, etc. are scavengers. In nature, many carnivores act as scavengers. कुछ एनिमल्स डेड एनिमल्स और प्लांट को खाते हैं, इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। वल्चर, raccoons and hyenas, ये सभी scavengers हैं। Carnivores and scavengers both feed on the flesh of other animals. Carnivores hunt their prey, whereas scavengers do not kill other animals. They feed on already dead animals. Carnivores अपने प्रे को पहले पकड़ता है उसे और फिर उसे मारकर खाता है, जबकि स्कैवेंजर्स ऑलरेडी डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। बट इन नेचर मैनी कार्निवर्स एक्ट एज स्कैवेंजर्स। So till now we have learned that according to the habitats, animals are divided into 5 groups. These groups are terrestrials, aquatic, amphibian, aerial and arboreals. Now on the basis of today's lecture, here is your homework. Answer the following questions. Why do the eagles and other birds of prey have strong and curved beak? ईगल और दूसरे प्रेज को पकड़ने वाले बर्ड की कर्व्ड और स्ट्रॉन्ग बीक
क्यों होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स अ बर्ड फ्लाई? एक बर्ड कैसे उड़ सकती है? तो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन. Fill in the blanks. Animals that eat both plants and animals are known as. Animal जो plant और animals दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Second, animals that live both in water and on land are known as. ऐसे एनिमल जो वाटर में और लैंड में दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नेक्स क्रॉल विद द हेल्प ऑफ डैश ऑन देयर बॉडी. स्नेक की बॉडी पर क्या होती है जिनकी हेल्प से वो क्रॉल कर सकते हैं? फोर्थ, एनिमल्स हैविंग थिक फर which is white in color are seen in dash region. ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पर व्हाइट कलर के थिक फर होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? किस रीजन में देखने को मिलते हैं? फिफ्थ, डैश फीट हेल्प डक्स टू स्विम इन वाटर. डक्स के कैसे फीट होते हैं जो उन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं? नाउ दिस इज होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 1 of chapter 3. Define the following terms. Adaptation. In order to survive and reproduce, animals have to adjust to their surroundings. This process of adjustment to surrounding is known as adaptation. अपने आसपास की सराउंडिंग से एडजस्ट करने को ही एडेप्टेशन कहते हैं. Habitat. The natural home of an animal is called the habitat. Question number 2. Why do some animals go on for winter sleep? Animals like bears and squirrel eat a lot of food when it is available in summer and store it as food under their skin. In winter, when the food is not available, they just go on the sleep for the entire season. This winter sleep is called hibernation. कुछ एनिमल्स जैसे बियर्स एंड स्क्विरल ये गर्मियों में बहुत सारा खाना खाते हैं और उसे अपने स्किन के नीचे स्टोर कर लेते हैं और विंटर में जब खाना उन्हें नहीं मिल पाता है तब ये इनएक्टिव हो जाते हैं और फॉर एंटायर सीजन सो जाते हैं. इसे ही विंटर स्लीप कहते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम खाना नहीं मिलता तो ये गर्मियों में जो खाना इन्होंने स्टोर किया होता है स्किन के नीचे उसे ही खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं और पूरे सीजन के लिए सो जाते हैं जिसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं. That's all for today's lecture. Happy learning and take care of yourself.